जी और आपका आज वीडियो में स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है इंडिया हाउस सेलिब्रेटिंग इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक 2024 रिलायंस फाउंडेशन यू स्पोर्ट्स। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल की इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कल्चर स्वदेश, वाओ, मतलब के लोकल प्रोडक्ट है ना। हाँ, तो मुझे बीच में हैंडमेड चीज़ें नजर आई। हैंडमेड जो चीज़ें स्वस्तेनस्तारिक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु। जय हिंद। Cool. वाओ, नाइस। यही क्या? ये का तो प्रेजेंट क्या मतलब कपड़ों की कलर बहुत वाइब्रेंट लग रहा है। अच्छा ना। हाँ, इंडिया हाउस Japanese. Ladies and gentlemen, my dear friends and colleagues from IOC and IOA, guests from Paris, India, and around the world. Namaskar, bonjour. Welcome to the first ever India House in the history of the Olympics. फर्स्ट स्टेप Today, we gather here at the Paris Olympic Games 2024 to open the doors to a dream that belongs to 1.4 billion Indians, a dream to bring India to the Olympics, and our shared dream to bring the Olympics to India. A nation in its journey through time reaches a tipping point, a point when it changes the course of its history. India has arrived. It is time that the flame that was first lit in Athens must light the skies of our ancient land, India, Bharat. The day is not far when India will host the Olympic Games. May this be our collective resolve at the opening of the India House. India House is envisioned as a symbol of India's Olympic aspirations. We hope it becomes a home away from home for our athletes, a place where we honor them, salute their spirit, and celebrate their achievements. It has taken our athletes years of blood, sweat, tears, and tireless perseverance to reach the global stage. Their stories are stories of hard work, resilience, and rising above all odds. I would like to share an inspiring story of one such athlete from India, Jyoti Yaraji, our sprinting queen. Jyoti comes from a very humble background.
Her mother works as a house help, and her father is a security guard. She grew up with limited means, but her dreams knew no bounds. She had talent, determination, and the willingness to work hard. And on the field, that's all that you need to succeed. This is the power of sport as the greatest equalizer. She was scouted by our Reliance Foundation coaches and started training at our high performance center. There was no looking back after that. She went on to become the first Indian to win gold in the 100 meters hurdle at the Asian Athletics Championship. Nice. She bagged silver at the Asian Games. She became the first Indian woman to run 100 meters hurdles in under 13 seconds. Today, she is the first Indian to qualify for the Olympics in the women's 100 meters hurdles, and she's here in Paris. A big cheer for her, please. More power to Jyoti and every young girl and boy in India and around the world who find the courage, passion, and discipline to chase their dreams and make them come true. Today, we salute all the athletes from around the world competing in Paris and send them our compliments, congratulations, and best wishes for the Games. Friends, at India House, we welcome the world to experience the beauty, diversity, and rich heritage of India right here in the heart of Paris. We will also showcase our art and culture, song and dance, technology and tradition. And of course, no celebrations in India are complete without Indian food and Bollywood music. Friends, India House is not a destination. It's a new beginning for India. And to celebrate it, we have a short program that brings you the essence and the spirit of our country. I hope you enjoy it, and I wish you all a wonderful time at the Games. May they embody the noble values of sport and Olympism. Sport is the biggest unifier, and our world and our children need it now more than ever before. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. After a spectacular opening ceremony of the Olympics, we're now witnessing a grand opening of a spectacular India House, the India Pavilion here, the first ever in the history of Olympics. So congratulations and a big thank you to Mrs. Ambani and to the Reliance Foundation for putting this up. This Olympics sets new direction for Olympic movement. But in the 21st century, Olympics must also seek new destinations. And there is no better destination in the world for Olympics than India. Now, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, sports is becoming an instrument of youth empowerment and development, of shattering the glass ceiling for women, of making a more inclusive society, and of transforming India. And it isn't possible without the extraordinary support of corporate sector in India, and Reliance Foundation has been in the forefront of it. It's a big thank you to them too. But in the meantime, over the next 2 weeks, enjoy everything as our athletes go for glory and gold, as they seek to break the record, as they seek to climb the podium. Also come here to the India House
to enjoy the magic of India. So thank you very much. So thank you to the Reliance Foundation. Thank you, Mrs. Ambani, for creating this wonderful thing. And all of you, please keep coming back. This is 2 weeks of India in Paris, when Paris and the world will fall in love with India again. Thank you. Friends, these are our children, and in spite of having many hardships, they have excelled in what they are doing. So please cheer for them, let them hear you. They perhaps cannot see you, but they can hear you for sure. So your voices will motivate them, your voices will encourage them, and let's give them a big shout of cheer. Good luck, my children, good luck. Okay. And a beautiful position of lotus Padmasan on top of the pole at the height of 8.5 feet above the ground. Okay. Ajay Disabled? Lalwani performing ये वो लगा था जैसे beautiful उन्हें सही inverted नहीं hang है position. आंखें ना Wow. Strength, stamina, speed, endurance, flexibility, neuromuscular coordination, balance, confidence, and Oh my courage. God. A beautiful knee hang position known as Mohan Bedi. And the smallest of the lot, Samarth Patil. The simple dasrang, the swift, agile, and intricate movements, firki, the serpentile, twisting and turning and balancing. Tedi, the cross leg grip, and Natarajasan. Oh my God. Wow. वाकई Again, Venkatesh on the two sides in Dronasan position. Riddhi and Komal in the center, with Bajrang Pakad the knee hold, Nita in the front, and Samarth at the back. And that's the final position of pyramid. The best Nice. example of team spirit and coordination. Balancing one's own weight at the same time balancing the weight of the partner. Kawat Visarjan. Thank you. कुछ करिए नच नच मेरी कमले कुछ करिए It's time to stop मुसु मुसु हंसी neon light कल अभी हमने हाँ हाँ ओके मैं कितना ये नहीं मैंने सुना हुआ मैंने सुना मैं ये तो उसका है ना रामलीला का नहीं क्या हो गया तुम्हें यार कौन सी गंगू movie? भाई का है हाँ ये कौन सी मूवी है भूल गया। आई डोंट नो किस मूवी का बट नाइस एक चीज़ है ना वो मानने वाली कि इंडियन पब्लिक हो या इंडियन जो है एक एलीट क्लास हो भाई उन्हें जो है ना चीज़ों को जो है वो सेलिब्रेट जो है वो करना आता है। अभी जैसे पेरिस ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट जो है वो होने ही वाला है और देखा जाए तो जिस तरह पवेलियन जो है बनाया गया फर्स्ट टाइम जो है वो बनाया गया। इससे पहले जो है मैंने इंडिया पवेलियन देखा था दुबई में खुद जाकर नहीं यहीं पे बैठकर जो है वो देखा था। लेकिन जो है ना मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना ये आपका विजन बहुत क्लियर करवाते हैं। देखो दुबई में जो पेविलियंस बनते हैं वो तो आपको डिफरेंट कंट्रीज के नजर आते हैं बट ओलंपिक्स में आपका खुद का एक पेविलियन होना अपनी कंट्री का ये बहुत मुझे लगता है बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जिस तरीके से बीच में बात भी की गई मतलब उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और बिल्कुल। सीरियसली मैं ये बात बोलूँगी कि
थोड़ा अरसा हम लोग जो फॉलो किया है अंबानी फैमिली को, उनके बिजनेस को, तो रिलायंस फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से उनकी फैमिली डिफरेंट सेक्टर्स में अपना एक कंट्रीब्यूशन देती है, ये बहुत, मैं कहती हूँ कि एक बड़ी बात है, क्योंकि आप देखो वो कंट्री को पुश कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाकर मतलब रिप्रेजेंट करना और एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बनाना। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है अंबानी फैमिली की कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत डिफरेंट लेवल पर आपको नज़र आता है। इवन के मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके से नीता जी ने बीच में मतलब उन्हीं की फाउंडेशन की जो एथलीट है जो कि ओलंपिक्स में है और वो इंडिया की पहली महिला बनी, तो मतलब ये एक बहुत ही गर्व की बात होती है कि सॉरी गर्व की बात होती है, मैं थोड़ा सा गर्व आपने कह दिया, बोल दिया, हाँ गर्व की बात होती है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से मतलब किसी ऐसे इंसान का आना, स्पेशली महिलाओं को लेकर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम से जो हमारा रीजन है, स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँगी तो वहाँ पर तो अभी भी बहुत ज़्यादा लैक करता है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो काफ़ी लंबे अरसे से आप ये देखो कि जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत अहम भूमिकाएं जो है वो निभाई हैं। और मैं कहूँगी कि आज इंडिया की जो इकॉनमी है या इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि महिलाओं को एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो उसका एक्नॉलेज किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि इस चीज़ के बगैर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। और जिन कंट्रीज़ ने इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया है, आप देखो कि उनका जो प्रोग्रेस का लेवल है वो कोई और ही लेवल आपको नजर आता है। यार उसके साथ साथ एक और चीज़ है ना कि भाई पावर का जो है ना वो डिसेंट्रलाइज होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आपको जो है ना एक चीज़ जो है वो नज़र आती है, ठीक है यार जो है आपको थोड़ा बहुत इश्यूज जो है वो देखने को हर जगह मिलते हैं दुनिया की किसी कंट्री में, जिसे आप परफेक्ट कंट्री भी कहेंगे ना, वहाँ पे भी आपको जो है ना इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि भाई आप पावर जो है ना खाली अपने तक नहीं रख रहे कि भाई हर चीज़ को मैं होल्ड करके बैठ जाऊँ, ये काम भी मैं करूँ, ये काम भी मैं करूँ, ये काम भी मैं करूँ। आपको जो है ना वो चीज़ नज़र आती है इंडियन गवर्नमेंट में भी और वहाँ के नेता में भी कि वो जो है ना चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो पावर जो है ना वो नीचे तक जाए। और नहीं, वैसे मैं एक बात बोलूँ, अगर जैसे हम लोग हिस्ट्री उठाकर देख लें मतलब इंडियन गवर्नमेंट की, तो जैसे हम लोग इंदिरा गांधी जी को देखते हैं, बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर वो रही हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन आप कह लो कि महिलाओं का जो रोल है वो आप देखो कि कब से स्टार्ट मतलब आपको इंडिया में होते हुए दिख रहा है और अभी आप देखो कि आगे मजीद वो ग्रो होता जा रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि इंडिया के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो इंदिरा गांधी जी थी, जो कि 70s के दशक में जो है वो बन चुकी थी। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे आपको 90s में जो है जाके पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, तो एक वो गैप जो नजर आता है ना, मुझे स्टिल ये गैप इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी में भी नजर आता है। 20 साल 30 साल का, अब तो मुझे लगता है 40 साल का। सीरियसली बताऊं तो जो हालात अब हम देखते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग स्टोन एज में वापस जाते जा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि यू नो एक बड़ा एक डिफरेंस है सोच में कि जहां पर एक साइड पर ये समझा जाता है कि भाई औरतें जो हैं वो बिगाड़ पैदा कर देंगी, यानी कि वो संतुलन नहीं रख पाएंगी, और दूसरी तरफ जहां पर ये सोचा जाता है कि औरतें जो हैं वो आपकी सोसाइटी को और ज़्यादा प्रोग्रेस करने में रोल प्ले करेंगी, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। दूसरी बात मैं ये बात बोलूँगी कि जिस तरीके से अभी जैसे गवर्नमेंट, नो डाउट हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, आई एम श्योर के पहले के भी, क्योंकि हम लोग तो अभी आकर देखना शुरू हुए हैं, तो पहले भी जितने प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे मतलब एथलीट्स के साथ बातचीत करना, उनको सपोर्ट करना, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना, मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। सो जो एक कंट्री की एलीट क्लास होती है उसका जो रोल होता है, अगर हम देखें तो आज के टाइम में भाई बहुत मैं कहूँगी कि अच्छे तरीके से इंडिया की जो एलीट क्लास है वो एक कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मुझे अब कल पता चला है कि भाई इंडिया में, स्पेशली मुंबई की बात करूँ, मुझे सिर्फ मुंबई का पता है कि वहाँ पर भाई आप खुद चूज़ करते हो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की लेनी है। तुम्हें पता है इस बात का?
मैं बहुत हैरान हुई सीरियसली ये चीज़ उनकी, यानी कि आपको क्या फर्क है वहाँ के बिजली के रेट्स में? शायद मतलब आपको टाटा की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर आपको अडानी की चाहिए। सो मतलब ये सीरियसली मेरे लिए एक नई वाह। चीज़ थी। हमारे यहाँ पे तो लेनी है लो, नहीं तो हम बंद करके जा रहे हैं। सही बात है, मतलब मैं ये देखो ना, मैं कहती हूँ कितना अच्छे सिस्टम जो हैं आपको नज़र आते हैं। बट खैर जितने भी एथलीट्स हैं उनको भाई बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाता है। और बट ये कि सपोर्ट मिल जाए तो बहुत इजी हो जाता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो भाई बहुत ही बुरे हालात हैं। लाइक अगर आप एथलीट्स की बात करो, उनकी फैसिलिटीज़ की बात करो, कोई खास एमिनिटीज़ उनको नहीं दी जाती, और स्पोर्ट्स कल्चर को भी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। इनफैक्ट मैं कहूँगी पिछले कुछ अरसे से तो इसको इतना पीछे धकेल दिया गया है कि जो लोग जाते भी हैं तो शायद मुझे लगता है वो अपनी ही आप कह लो कि जैसे हम अरशद नदीम सर की बात करें तो मतलब काफ़ी दिक्कत उनको भी इनिशियली जो है वो फेस करना पड़ी। सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट ये कि आज का ये मंच देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने रखा। देखो अमूल का वो लस्सी थी, दूध था, जो भी था, लेकिन आपका लोकल ब्रांड जो है वो प्रमोट हो रहा है। बिल्कुल। और साथ साथ जो है मैं बात करूँगा जो परफॉर्मेंस बीच में जो है वो दिखाई गई, तो वो हालांकि वो जो पोल पे जो है इस तरह जो एथलीट करते हैं वो हमने बहुत सारे जो है वो देखी हैं वीडियोस इन द पास जो है, जैसे हमारे टीवी चैनल्स पर जो है वो आती थी। और लिटरली जब आप उस टाइम देखते थे ना तब तो आपको आइडिया नहीं था। IGT में देखा था मैंने। इंडिया गॉट टैलेंट में मोस्टली है। तो तब तो हम हैरान होते थे कि भाई कैसे कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अब जैसे जैसे नॉलेज जो है हमें भी मिलता है तो हमें इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि भाई इसके पीछे जो है ना बहुत सारी मेहनत, डेडिकेशन और जो है ना एक प्रॉपर होमवर्क है उनका। और ये चीज़ देखो कि जिस तरीके से रिलायंस फाउंडेशन जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उन लोगों को भी फैसिलिटेट कर रही है, उनको भी स्किल्स सिखा रही है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चला है कि भाई कि पहली मर्तबा ओलंपिक्स में जो इंडिया का आपको एक मंच जो है वो इंडिया हाउस देखने को मिला है। सो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें वीडियो चैनल करें, वीडियो बाय।